Assalamu alaikum class 6. Welcome to all of you in new class. Today we are going to take start from our very first chapter, Nicobarbinis. So take out your English books and hold your pencils in your hand in order to note down the difficult meaning of the words. Nicobarbinis is a boy. Basically this chapter is by the name of boy, लड़के के नाम से ही है, who is very fond of doing adventurous thing with his best friend Rosie, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड रोजी के साथ एडवेंचरस थिंग करना पसंद करता है. दिस पीस ऑफ राइटिंग इज टेकन फ्रॉम द नॉवल निकोबार्बिनस. ये निकोबार्बिनस नॉवल से ही लिया गया है. If you want to read the full story, if you are interested, you have to read the full novel. आपको पूरा नॉवल पढ़ना पड़ेगा. निकोबार्बिनस का ये जो पीस ऑफ राइटिंग हमने स्टार्ट किया है, इसमें बेसिकली हम उसके एडवेंचर के बारे में पढ़ेंगे. When his friend Rosie asked him to find out the land of dragons. जब उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि लेट्स फाइंड आउट द लैंड ऑफ ड्रैगन, कि आओ ड्रैगन्स का लैंड फाइंड आउट करते हैं. अब इस चैप्टर में ड्यूरिंग देयर जर्नी उन्होंने बीच में क्या चीज़ें फेस की हैं या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं, हम उसे ड्यूरिंग रीडिंग रीड करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिक्टेट द डिफिकल्ट वर्ड्स and their meaning. The very first word is extraordinary. Extraordinary mean गैर मामूली. Wild ideas, अजीबो-गरीब ख्यालात. Weeds, जंगली घास फूस. Daft, बेवकूफ. Supplies, अशियाए खुर्दनोश, खाने पीने की चीजें. Now I am going to dictate the dictation words. Highlight these words. The very first word is extraordinary. Extraordinary के बाद stuck, tongue, minister, nicobarbinis, Venus, ideas, weed, thought, discover, daft, shutters, pebbles, whispered, lemonade, supplies, remember, forgotten. ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं जिन्हें आपने लर्न करके राइट करना है लूज शीट्स पर. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड. ये कहानी बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली बच्चे की है. Who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. जिसने कभी वज़ीर आज़म को ज़ुबान निकाल के दिखाई थी. I am reading again the reading. This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. His name was Nicobarbinis. He lived a long time ago in a city called Venus, and he could do anything. उसका नाम निकोबार्बिनस था. वो बहुत अरसा पहले वीनस के एक शहर में रहता था और वो कुछ भी कर सकता था. Of course, यकीनन, not everybody knew he could do anything. हर कोई नहीं जानता था कि वो कुछ भी कर सकता था. In fact,
दर हकीकत ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी, सिर्फ उसकी बेहतरीन दोस्त रोजी, न्यू जानती थी, एंड नोबडी टुक एनी नोटिस और कभी किसी शख्स ने उसका उस पर गौर नहीं किया था, ऑफ एनीथिंग किसी भी बात का, रोजी सेड जो रोजी कहती थी, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज एनीवे, क्योंकि वो हमेशा अजीबोगरीब ख्यालात बहरहाल रखती थी. आई एम रीडिंग अगेन. ऑफ कोर्स not everybody knew he could do anything. In fact, only his best friend Rosie knew, and nobody took any notice of anything Rosie said, because she was always having wild ideas anyway. One day, for example, एक दिन मिसाल के तौर पर, Rosie said to Nick Bobines, Rosie ने निक बॉबिनेस से कहा, Let's pull up every single weed on your doorstep. चलो उखाड़ देते हैं हर जंगली घास फूस को on your doorstep, तुम्हारी दहलीज पर. Let's not, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, said Nick Bobines ने कहा, which is what Rosie thought he would say, जो कि रोजी ने सोचा था कि वो कहेगा. In that case, इस सूरत में, replied रोजी ने जवाब दिया, Let's discover the land of dragons. चलो land of dragons, ड्रैगनों की दुनिया दरियाफ्त करते हैं. Don't be daft, बेवकूफ मत बनो, said Nick Bobines ने कहा. How can we do that? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? Because you can do anything. क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो, said रोजी ने कहा. So, the next morning, अगली सुबह, just as it was getting light, जब रोशनी हो रही थी, Rosie threw little pebbles up at Nick Bobines' shutters. जब रोशनी हो रही थी, रोजी ने छोटी कंकरियां निक बॉबिनेस के शटर्स पर मारी. शटर्स मतलब खिड़की का दरवाजे पर. निक बॉबिनेस was still half asleep. निक बॉबिनेस अभी भी सोया हुआ था. when he looked out, यानी अभी भी गनूदगी में था जब उसने बाहर देखा. What's the matter? क्या मसला है या क्या मामला है रोजी? he asked, उसने पूछा. Shh, whispered रोजी ने सरगोशी की. I've got the buns and the lemonade. मेरे पास बन और लीमू का शरबत है. What for? किस लिए? asked Nick Bobines ने पूछा. Supplies for the road. सफर के लिए खाने की चीजें, अशियाए खुर्दनोश. whispered रोजी ने सरगोशी की. Where are we going? हम कहाँ जा रहे हैं? asked Nick Bobines ने पूछा. We are going to find the land of dragons. हम यानी ड्रैगनों की दुनिया तलाश करने जा रहे हैं. whispered रोजी ने सरगोशी की. Don't you remember? क्या तुम्हें याद नहीं है? Oh, I thought you might have forgotten about that, said Nick Bobines. मैंने सोचा कि शायद तुम भूल गई होगी. निक बॉबिनेस ने कहा. No fear. कोई डर नहीं, कोई खदशा नहीं, said रोजी ने कहा. It's one of the best ideas I ever had. I have की शॉर्ट फॉर्म है. ये मेरे अब तक के बेहतरीन ख्यालात में से एक है. What about the weeding? जंगली घास फूस के बारे में क्या ख्याल है? said निक बॉबिनेस ने कहा. Come on, said रोजी. से छोड़ो भी, रोजी ने कहा. यानी वो अब उस आइडिया को छोड़ने के लिए कह रही है. आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश रीडिंग प्रिपेयर करनी है और
इसकी डिक्टेशन प्रिपेयर करनी है। ट्रांसलेशन जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए की गई है, ठीक है। तो आपकी डायरी में डिक्टेशन वर्ड्स हैं जो हाईलाइट करवाए गए हैं और साथ में इंग्लिश रीडिंग।